Do not ask what the world will give you, ask what will you contribute. Your future is not something you wait for, it's something you build. Class of 2025, stand tall, step forward with confidence, carry out your values with pride, and remember, wherever you go, whatever you achieve, you carry the hopes of your families, your university, and your nation. Before I end my speech, I always at convocations or whenever I'm making a speech at an engineering university, I read out excerpts from an article written by the 31st President of the United States, Herbert Hoover, who was an engineer himself, a very successful mining engineer. Unfortunately, he was not a great president. And after he retired from politics, he went back to engineering, and this is what he wrote about engineering. I'll just read out a few excerpts from his speech. And I quote, "It's a great profession. There is fascination of watching a figment of the imagination emerge through aid of science to a plan on paper. Then it moves to realization in stone or metal or energy. Then it brings jobs and homes to men. Then it elevates the standards of living and adds to the comfort of life. That is the engineer's high privilege. The great liability of the engineer compared to men of other profession is that his works are out in the open where all can see them. His acts, step by step, are in hard substance. He cannot bury his mistakes in the grave like the doctors. He cannot argue them in thin air or blame the judge like the lawyers. He cannot, like the politician, screen his shortcomings by blaming his opponents and hope that the people will forget. The engineer simply cannot deny that he did it. On the other hand, unlike the doctor, he is not a life among the weak. Unlike the soldier, destruction is not his purpose. Unlike the lawyer, quarrels are not his daily bread. To the engineer falls the job of clothing the bare bones of science with life, comfort, and hope. No doubt, as years go by, people forget which engineer did it, even if they ever knew. Or some politician put his name on it. Or they credit it to some promoter who used other people's money with which to finance it. But the engineer himself looks back at the unending stream of goodness which flows from the successes with satisfaction that few professions may know. And the verdict of his fellow professionals is all the accolade he wants. So, class of 2025, congratulations. May your future be bright, your impact be meaningful, and your journey be filled with purpose. Thank you very much. Pakistan Zindabad. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। टांक में शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में भी खवारिज के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया और लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। मारे गए भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलवस पाए गए थे। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों की तफसील आपके सामने रख रहे हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया।
टांक में शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में भी खवारिज के खिलाफ खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया और लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। मारे गए भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। लाहौर में 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुनशियात फरोश अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को उनके साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की और इस दौरान फायरिंग भी की, जिसके बाद 3 मुनशियात फरोश मारे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का कहना है कि बानी PTI ने बातचीत का मौका गवा दिया है। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अतातार का कहना था कि बानी PTI के बगैर जिसे बात करनी है वो पार्लियामेंट में बात करे। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से कोई बातचीत नहीं है। जो फौज को कमजोर करे, फौज के इदारे को कमजोर करे, मुल्क में आग लगाने की कोशिश करे, मुल्क को नुकसान पहुंचाए, कोई स्कोप नहीं है। हाँ, इमरान खान के बगैर बात करनी है, पार्लियामेंट में जरूर बात करें, अपने रवैये पे माजरत करें और आके कहें कि जी हमें शर्मिंदगी है कि हमारा लीडर जो है वो इतने गंदे बयान देता है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर गौर किया जा सकता है। अदर देन दैट आई थिंक दे मिस द चांस। पॉलिटिकल स्पेस भी स्क्वीज होगी, नैरेटिव स्पेस भी स्क्वीज होगी और मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे और मैं नहीं समझता कि इनका कोई फ्यूचर है। इससे मुतालिक PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI बुशरा बीबी जेल में मौजूद हैं। उनसे मुलाकातों की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अपने पैगाम में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें ये या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक बात है। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, न है न होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फितरी और कुदरती रद्द-अमल दिया गया। अगर PTI वाले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, इस जंग को अपना नहीं सकते, शहीदों के जनाजे नहीं पढ़ सकते और इसके बजाय हिंदुस्तानी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इंटरव्यू देते हैं तो फिर यही जुबान सुनेंगे जो सुनी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की हमशीरा की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू फैसला कुन मरहला साबित हुई। आप समझते हैं इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल और इतनी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? इमरान खान साहब की हमशीरा ने इंडियन मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि वो एक दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। ये एक टिपिंग पॉइंट आया है। आज ताल्लुकात भी एक किस्म के खत्म हुए हैं, जंग हुई है और इस माहौल के अंदर उन्होंने उनको डिलिबरेटली इंटरव्यू दिया है। आज तक बताइए कि किसी शहीद का जनाजा जो है किसी PTI के लीडर ने पढ़ा हो? जनाजा नहीं पढ़ते, बता देते हैं उनको। इवन तालिबान भी तकल्लुफन जो है अफसोस का इजहार करते हैं, ये हमने नहीं किया, ये फलाने की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है क्या वो PTI ने ऑन की है? कि कहीं भी नहीं की। हमारा क्या है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया उनकी सियासत खत्म, पीपल्स पार्टी के बारे में कहा गया उनकी सियासत खत्म, नहीं हुई सियासत खत्म। आज कहा गया DGISPR की तरफ से कि इमरान खान की सियासत खत्म, उसका बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। आपको लगता है सियासतदान की सियासत ऐसे खत्म हो सकती? किसी फौजी तनसीबात के ऊपर या कंटोनमेंट के ऊपर या कोर कमांडर के घर के ऊपर पाकिस्तान की तारीख के अंदर 78 साल तारीख में किसी सियासी पार्टी ने जो है वो हमला किया था। जुबान जो बोली गई है वो इसलिए मैं उसको कहूंगा ठीक बोली गई है कि ये अल्टीमेट एक कुदरती और फितरी जो है रद्द अमल था जो किया गया है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि PTI से अब मुज़ाकरात के इम्कानात नहीं। बानी PTI के ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल के बाद लगता है कि हालात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं, बानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले गए हैं। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने PTI को ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को तो वो वापस नहीं ले सकते और ना ही उन्होंने वापस लिया है। इससे पहले अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है।
सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि बहुत दिनों से बता रहा था कि पीटीआई एक मंसूबे के तहत ये सब कर रही है। ये चाहते हैं कि तसादुम हो और ये सियासी शहीद बन जाएं और गवर्नर राज लग जाए। 9 मई केसेस के मुल्ज़िमान खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं। पाबंदी, नाअहली, गवर्नर राज, 9 मई केसेस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ पीर से टिक मार्क लगाना शुरू कर दें। लाहौर हाई कोर्ट ने शादी से इनकार पर लड़की को मुबैना तौर पर कत्ल करने में मुलविस मुल्ज़िम की अपील मंजूर कर ली और सजाए मौत कलअदम करार देकर उसे बरी कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुल्जिम मोहम्मद हुसैन की अपील पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्जिम के खिलाफ 2021 में थाना सरगोधा में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में उसे मौत और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिम के खिलाफ केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। एक छोटा सा शक भी मुल्जिम की बरियत के लिए काफ़ी होता है। अदालत मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करती है। बानू में मीरान शाह रोड के करीब गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक और मरने वाले मैयत को शुमाली वजीरिस्तान लेकर जा रहे थे। अभी खबर है शकरगढ़ से, जहां पर शाहपुर में गीदड़ के हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 2 बच्चे और खातून शामिल है। शकरगढ़ से ये खबर है, जहां पर शाहपुर में गीदड़ के हमले में 4 अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी कल्चरल फेस्टिवल आज अपने 37वें रोज में दाखिल हो गया है। इसकी तफसील बताएंगी शवाला असलम। जियो और जंग के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आज अपने 37वें रोज़ को पहुंच चुका है और हर नए दिन के साथ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कुछ नया ही लेकर आता है। और आज 37वें रोज़ भी मुख्तलिफ सेशंस का यहाँ पर इनेकाद करवाया जा रहा है। दोपहर में जो इटालियन परफॉर्मेंसेज हैं, फाइन आर्ट परफॉर्मेंसेज और इसके साथ ही जो थिएटर्स हैं, उनका यहाँ पर इनेकाद करवाया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर फ़लस्तीन से मुतालिक जो फिल्म है नो अदर लैंड, उसकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। सिर्फ यही नहीं है बल्कि रात 9 बजे यहाँ पर डांस नाइट का भी एहतमाम आज किया गया है। हम ये देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है अब अपने अख्ताम को भी पहुंच रहा है और बहुत खूबसूरती से इसने ये सफ़र अपना मुकम्मल भी किया है, जिसमें हमने ये देखा कि जो बैनुल-अक़वामी फ़नकार हैं उन्होंने भी अपने फ़न का मुज़ाहिरा बहुत खूबसूरती से किया और बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए। ये जो खूबसूरत सफ़र था वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का, वो कल यानी कि 7 दिसंबर को अपने अख्ताम को पहुँचेगा। जी।